پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک ترین نام میں آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں خداوند کی اس خوبصورت ترین وقت کے لیے اور اس میڈیا فیسلٹی کے لیے، کی جانے والی پرستش اور دعاؤں کے لیے جو ہم خداوند کے حضور کر پائے، اور دنیا کے خاک کسی ہی کونا میں کیوں نہ ہوں، ہم ہوا کے دوش پر کلام کی خوبصورت باتوں کو سن سکتے، شیئر کر سکتے اور برکت پا سکتے ہیں۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں قید میں ہوں، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوں، لیکن خدا کا کلام نہیں ہے۔ پینڈیمک کے سبب سے اب تو گرجا گھر کھل رہے ہیں، لیکن میں یوں کہوں گا جب بند بھی تھے تو خدا کا کلام لوگوں کے بیڈ رومز تک پہنچتا تھا، اور اب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہوئے اپنے مضمون کی طرف آئیں گے۔ آج دوسرا حصہ ہے اس بڑے موضوع کا کہ ہم پیغام کیسے تیار کریں۔ گزرے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا موضوع کیا ہے، مضمون کیا ہے جس پر مجھے بولنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ جب موضوع پتہ چل جائے تو خدا کے حضور جھکا جائے تاکہ خدا اپنے کلام سے کوئی ریفرنس اور حوالہ بھی دے، الفاظ بھی اور خیال بھی دے، اور خداوند سے پوچھیں کہ اے خدا میرے لیے اور ان لوگوں کی عین ضرورت کے مطابق مجھے اپنے الہی خیال دے۔ اور نمبر 3، میں نے کہا تھا کہ ایسا حوالہ متن نکالیے جو ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کوشش کرے کہ بہت لمبا حوالہ نہ ہو۔ اگر بہت لمبا حوالہ ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ حوالہ اناؤنس کریں، لیکن ایک مرکزی اور کلیدی آیت بیان کریں کہ میں اس آیت پر آج بات کروں گا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ تیاری کے دوران بارہا بار حوالہ تلاوت کریں، پڑھیں، سوچ اور سمجھ کر، مشکل الفاظ کو قلم زد کرتے چلے جائیں یا پیپر پر لکھتے چلے جائیں، اور ساتھ اگر کوئی تفسیر کی کتاب ہو تو یہ اچھا ہوگا کہ ہم کتاب مقدس کی تفسیر اپنے ساتھ رکھنے والے ہوں، اور اگر کوئی اور بائبل مقدس کا ترجمہ بھی ہمارے ساتھ ہے ہم پڑھ سکتے ہوں تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور پھر 5ویں نمبر پر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ممکن ہو کوشش کریں 3 نکات تک آپ میسج تیار کریں، تقریباً 3 نقطے، 3 پوائنٹس، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میسج کس طرح کا ہے۔ 2 بھی پوائنٹ ہو سکتے ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان پوائنٹس کو اس ٹائم فریم کے اندر کور کرنا ضروری ہے جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے یہ پوچھا تھا، گزری دفعہ کہا تھا کہ جب کوئی اور انوائٹ کرے تو پوچھیں کہ میرا ٹائم کتنا ہے، جتنا ٹائم میں بولوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں او جی کھلا ٹائم ہے گا، لیکن پھر بھی کوشش کریں اگر کھلا ٹائم بھی ہو 35 یا حد ہو تو 40 منٹس کا میسج ہو، لیکن اگر 20 منٹ کا ہو یا حد ہو 30 کا تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ چھٹی بات میں نے یہ کہی تھی کہ کوئی آپ کے موضوع کے تعلق سے مثال ہو
जो अमली सी हो और इस किताब मुकद्दस के हवाला के साथ मिलती जुलती हो तो यह ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोशिश की जाए कि एक से ज्यादा मिसालें ना हो, क्योंकि फिर मिसालों से ही हमारा टाइम फ्रेम कवर हो जाएगा और हम जो खुदा के कलाम से बात कर रहे हैं वो लोगों तक सही तौर पर पहुंच नहीं पाएगी। मैंने यह भी कहा था कि जब आप अपने मैसेज को कंक्लूड करते हैं, अपने मैसेज को मुकम्मल करते हैं 7वें नंबर पर, तो मैंने यह कहा था कि अच्छा होगा कि सुनाते वक्त, एंड पर कंक्लूड करते वक्त उस मैसेज की अहम बातें, मेन बातें फिर से दोहराई जाए, ताकि सुनने वालों के जहन में यह बात हो और मैसेज सुनाने के इख्तिताम पर आप खुदावंद का और उन लोगों का इब्तिदा में या आखिर पर शुक्रिया अदा कर लें, लेकिन बहुत लंबा ना हो, सिर्फ छोटा सा जुमला, यह काफी होगा। आज थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे खुदा के कलाम की तैयारी के ताल्लुक से। मिसाल के तौर पर हम ये मैसेज देखते हैं कि कौन सी इबादत काबिल कबूल है। मसलन मेरा मजमून ये है कि ऐसी कौन सी इबादत है जो खुदा के हुजूर काबिल कबूल है, या मेरा मजमून रियाकारी हो सकता है, लेकिन यह जरा नेगेटिव साइड पर ज्यादा जाएगा, या इबादत में मुनाफिकत, यह भी जरा नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा। दिखावा भी हो सकता है, लेकिन यह भी थोड़ा नेगेटिव साइड पर जाएगा। इसलिए मजमून का इंतखाब करते हुए अगर खुद इंतखाब करना है तो बेहतर होगा कि कोई पॉजिटिव पॉइंट लिया जाए और फिर नेगेटिव बातें ऑटोमेटिकली प्रीचिंग के दौरान आएगी, ताकि लोगों के साथ उनको शेयर किया जा सके। मैं समझता हूं कि यह मौजू ज्यादा बेहतर होगा, यह मजमून ज्यादा बेहतर होगा कि कौन सी इबादत खुदा के हुजूर काबिल कबूल है, या मकबूल इबादत, मुख्तसर तौर पर। अब मजमून हमें मिल गया है किताब मुकद्दस में, इस ताल्लुक से बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं सब हवाले तो इस वक्त बयान करने से रहा, आप खुद उन हवाला जात पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक हवाला रखना चाहता हूं आपके सामने, और यह मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस है, और इसका 18 बाब, लूका 18 बाब। और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है और वाकई मेरे साथ मिलकर इस वक्त सीखने के मूड में हैं, तो आप जरूर इन बातों को नोट कर लें। अगर आपका जहन कंप्यूटराइज्ड है कि हर एक बात को अच्छी तरह से आप नक्श कर लेते हैं अपने जहन में और कभी कभी नहीं भूलते, तो फिर मत लिखें। लेकिन अगर आपका जहन मेरे जहन की तरह है कि रात दा खादा होया भुल जाने, तो फिर अच्छा होगा कि इन पॉइंट्स और इन निकात को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके काम आएंगे। और आप जो फेसबुक पर हैं, आप बाद में भी फेसबुक पर इस टीचिंग को ले सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, लेकिन अपने लिए नोट्स जरूर तैयार करें। बाद में आप YouTube पर भी इस मैसेज को, इस टीचिंग को देख सकते हैं। तो लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका 18 बाब और इसकी 9 से 14, यानी ये 5 आयात हैं, 6 आयात हैं, इन पर हम बात करेंगे। मैं तलावत करता हूं। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला।
फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्त नमाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जब हवाला के तलावत करने की बात आए तो बाज चर्चिज में यह कहा जाता है, जी कोई ऐसा हवाला है जो आप चाहते हैं कि तलावत किया जाए? बेहतर होगा कि वक्त की बचत के लिए यह हवाला ऑलरेडी उनको दे दें ताकि तलावत करें। और जब इस पर मैसेज देने की बारी आए तो आप यह कह सकते हैं, मेरा आज का हवाला लूका 18:9 से 14 है, और यह ऑलरेडी आपके लिए तलावत हो चुका है, और यह पहली बार आप नहीं सुन रहे, पता नहीं कितनी बार आपने सुना होगा। और फिर उसके बाद यानी इंतजामिया के लिए सबसे पहले खुदा का शुक्र करना, फिर इंतजामिया के लिए शुक्रगुजारी करना, फिर अपने मजमून को बयान करना कि मेरा मजमून ये है और मेरा हवाला ये है। यह हवाला ऑलरेडी आपकी खिदमत में तलावत किया जा चुका है, और फिर जरा पस मंजर बताना है इस हवाले के पीछे क्या है। अब बताएं कि अहले यहूद में ऐसे होता था कि लोग बाजारों में कोई नेकी का काम करते, सखावत करते तो लोगों के दिखाने के लिए किया करते थे, नरसिंगे फूंकते थे। मसीह ने कई बार इस तरह की हरकत से मना किया, ये रियाकारी और ये मुनाफिकत और ये दिखावा। और खुदावन ने कहा ऐसा नहीं करना, नरसिंगा नहीं भोंकना, क्योंकि ये खुदा के हुजूर एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहां भी खुदावन यीशु मसीह फरमा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जो अपने आप पर बहुत भरोसा करते थे कि हम बड़े रास्तबाज हैं, और दूसरे लोगों को वो हकीर जानते थे। मसीह ने तमसील में बात की, यानी किसी तमसील से मुराद कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी मिसाल जो उस जमाने में लोगों के लिए आम फहम हो, और फिर उस वाकये को बयान करके मसीह खुदावन एक सच्चाई को बयान करते हैं। यह है पस मंजर। और फिर आप अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं, यानी पस मंजर की बात यह कि हवाला में क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, किससे कलाम हो रहा है, और किस मौजू पर बात हो रही है। फिर नंबर 1 जो मेरे लिए यहां पर बड़ा गौर तलब है वो ये है कि इबादत की मकबूलियत के लिए खुदाबंद यीशु मसीह की तालीम क्या है। इस पूरी तमसील में अगर आप मेरे साथ थे, पहले भी आपने इस हवाले को पढ़ा होगा, एक बात नजर आती है कि खुदा मगरूर का मुकाबला करता है, लेकिन फरौतनों को तौफीक बख्शता है। मैं खुदा के हुजूर जाकर बड़ी बढ़ के मारूं, है खुदा मैंने इतने रुपए दिए हैं चर्च के लिए, है खुदा मैंने प्लाट बना कर दिया है, मैं बड़ा 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 बड़ा। खुदा को नहीं पता तू क्या है, लेकिन बजाय इसके के बढ़ के मारूं, मैं ये कहूं खुदावंद शुक्र हो कि मैं इस लायक हुआ कि आपकी बादशाही के लिए कुछ कर सकूं। यह ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि खुदा को यह बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है। तो खुदा हमारी ऐसी इबादत चाहता है जिस इबादत में हलीमी, फरोतनी, खाकसारी, आजिजी हो और संजीदगी हो। हम खुली किताब की मानिंद
खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर हूं। लेकिन इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जो मजहबी रहनुमा था, लेकिन वो अपने आप पर फख्र करता था, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं। रोजे दाया की नेकियां। पैगाम तैयार करते हुए आप नोट्स बना सकते हैं कि इस मजहबी रहनुमा में क्या क्या वो सोचता था कि मुझ में खूबियां हैं। और यहां पर इसका नाम फरीसी लिखा हुआ है। एक फरीसी था, उसका पर्सनल नाम नहीं था, लेकिन मजहबी फिरके के एतबार से वो पहचाना जा रहा था। और यहूदियों में फरीसी थे और फकीही थे, हरोदी थे, सदूकी थे। इनकी मुख्तलिफ तालीमात थी। और फरीसी वो लोग जो आम तौर पर शरअ की तालीम दिया करते और मुअल्लम होते थे। मुकद्दस पौलुस भी अपने आप को ऐसे ही कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इस बात का जिक्र करना ना भूलें कि खुदा हमसे हलीमी और फरोतनी चाहता है। जब पैगाम दे रहे हूं तो उस वक्त लोगों को डायरेक्ट उंगली उठाकर नहीं कहना, लेकिन इस अंदाज से बात करनी है कि हम अपनी इबादत को पहचानें। जो मैं इबादत करता हूं मैं पहचानूं, जो आप इबादत करते हैं उसको पहचानें कि उसमें क्या यह होता है कि मैं कितना बड़ा रास्तबाज नेक हूं, या उस इबादत में संजीदगी और आंसू होते हैं खुदा के हुजूर। क्योंकि जब तुम सब कुछ कर चुको तो फिर भी कहो मैं निकम्मा नौकर हूं। तीसरी यानी दूसरे नंबर पर फरीसी के बारे में बताना था। तीसरे नंबर पर यह कि महसूल लेने वाले का रवैया क्या था। अब यहां पर यह बताना जरूरी है कि यह महसूल लेने वाला शख्स असल में कौन था। यानी उसका नाम तो आप नहीं जानते क्योंकि यहां नहीं लिखा हुआ, लेकिन महसूल लेने वाले लोग क्या किया करते थे। वो लोग अपने ही यहूदी लोगों से टैक्स और जजिया लेते, खून चूसते उनका, जिनमें एक शख्स शमौन शामिल है। और वो क्या करते थे, वो इस टैक्स को लेकर रूमी सरकार को आधा अपनी पॉकेट में और आधा रूमी सरकार को दिया करते थे। और इनमें मती भी और बहुत सारे और ऐसे थे जो इस तरह के काम किया करते थे। शमौन ज़लोतिस जैसे लोग थे जो इस तरह के काम किया करते थे। तो आप ये बता सकते हैं कि महसूल देने वाले का रोल क्या था। वो किया करते थे, उनको जालिम कहा जाता था, और अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको बाहर रोड पर भी लाया जा सकता था। लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन देखिए, महसूल देने वाला जब खुदा के हुजूर आता है उसको अपना आईना नजर आता है। खुदा की हुजूरी में जब आते हैं ना तो अपना आईना नजर आता है। और महसूल लेने वाला खुदा के हुजूर पुकार पुकार कर कहता है, ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। ये तीसरा नुक्ता है और इसको अप्लाई कर सकते हैं जमात पर और अपने आप पर कि जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो क्या हम खुदावंद के हुजूर अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का इकरार करते हैं, अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं और खुदावंद की तरफ इवन आंख उठाने के काबिल नहीं होते। यहां पर छाती पीटना से मुराद वो अपने आप पर मातम कर रहा था कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि मैं आपकी हुजूरी में आ सकूं। और फिर खुदावंद बजाते खुद दुआ की मकबूलियत का राज बताते हैं। यह चौथा नंबर है। और वो दुआ की मकबूलियत का राज बताते हैं और वो ये है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। गुरूर, घमंड,
ਗਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ यारी, बल्कि वो जो फुरोतन और हलीम अपने आप को छोटा बनाते हैं, खुदा की हुजूरी में खुदा उनको सरबुलंद करता है। सरफराजी का फार्मूला बाइबल मुकद्दस में, तरक्की का फार्मूला यह है कि अपने आप को छोटा बनाना शुरू कर दो, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा खुदा उसको बड़ा बनाएगा। मुनज्जी आलमीन खुदावन यसु मसीह, खुदा का कलमा जिस्म इख्तियार कर स्टेप बाय स्टेप इस दुनिया में आए, अपने आप को पस्त कर दिया। ओ फिर खुदा ने ऐसा सरफराज किया, ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि हर एक घुटना खुदावन के हुजूर झुके और हर एक जबान खुदावन यसु मसीह का इकरार करे। अब आखिरी नंबर और पांचवा नंबर ये कि हमें यह देखना है कि हमारी दुआओं में रुकावट क्या है। हमारी इबादत और रियाजतें और रोजे खुदा के हुजूर एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होते? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले के तहत कहीं रियाकारी और दिखावा, कहीं अपने आप को बड़ा रूहानी साबित करना, हीरो और हूं जीरो, कहीं ऐसा तो नहीं है? और फिर यूं हम आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बात को बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा था कि कोई छोटी सी मिसाल आप दे सकते हैं इस रियाकारी की, और आप कह सकते हैं हमारी जिंदगी में रोजाना के मामूल के मुताबिक कहीं ना कहीं कोई दिखावे का अंसर हम में आ जाता है। मसीह खुदावन एक बार हैकल में एक खास मकाम पर बैठे थे और देखते थे कि लोग कितना हदिया ला ला कर हैकल के खजाना में डालते थे, और लोग अपनी तौफीक के मुताबिक आते और वो सोचते थे जितना ज्यादा डालेंगे उतनी ज्यादा बरकतें, लेकिन उनका दिल लालच से पुर था कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मिलेगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह एक और बुजुर्ग बूढ़ी खातून का जिक्र करते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था मासवा 2 दमड़ियों के, और उसने यही उसकी सारी जमा पूंजी थी। उसने इस जमा पूंजी को उस हैकल के खजाने में डाल दिया, और बाद में मालिके दो जहां फरमाते हैं कि अगरचे तुमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस खातून ने बहुत बड़ा हिस्सा खुदा के काम के लिए दिया है, ऐसा जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसने जो कुछ दिया उसने अपने दिल से दिया, और इन बाकियों ने जो कुछ दिया है अपनी तौफीक, अपनी हस्ती, अपनी रास्तबाजी जिताने के लिए दिया है। खुदा हमारे दिल की हालत को जानता है। कहीं मैं और आप जब कोई रास्तबाजी के और नेकी के काम करते हैं, दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो कहीं नरसिंगा तो नहीं फूंकवाते, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों को बता बता कर ऐसा करते हैं। और फेसबुक पर आए दिन हमें इस बात के ताल्लुक से एक प्रोटेस्ट नजर आता है कि बहुत सारे लोग गुरबा की मदद करते हैं, लेकिन मदद के दौरान उनकी फोटोज, उनकी पिक्चर्स इस तौर पर लेते हैं कि जैसे दर हकीकत अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो जिनकी हेल्प हो रही है उनकी इज्जतों को नीलाम भी किया जा रहा होता है, जो दुरुस्त नहीं है। हम इस हकीकत को यहां पर देखते हैं, और इस
उसके साथ साथ मैं आखिर पर यही कहूंगा कि मौका दें कि लोग अपने आप पर सोचें और खुदा की तरफ रुजू लाएं और खुदा के हुजूर अपनी कमजोरियों का इकरार करें। लेकिन अगर आपका मैसेज बिशारती टाइप हो तो एंड पर लोगों को मौका दें कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। तो गोया यूं आप अपने मैसेज का मौजू, हवाला और उसके बाद चंद निकात बनाते हुए, मुश्किल अल्फाज को खोल कर बयान करते हुए, पसे मंजर का जिक्र करते हुए आप नतीजे की तरफ आ सकते हैं कि खुदा हमारी कैसी इबादत को कबूल करता है। इस मौजू को पैगाम के दौरान मुतअद्दिद बार दोहराते रहने की जरूरत है। अब आखिर पर एक और बात कहता चलूं, पैगाम देने के दौरान या बाइबल स्टडी के दौरान कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन एहतियाती तदाबीर का याद रखना बहुत 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 जरूरी होगा। मसलन जब कलाम सुना रहे हों तो मैंने कई जगहों पर देखा है कि कलाम सुनाने के दौरान जो कलाम सुनाने वाला है वो जितने बैठे हुए होते हैं उनसे कहता है, आप लोग इस तरह से करते हैं, आप लोग रोजा नहीं रखते, आप लोग दायकी नहीं देते, आप लोग ऐसे और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आप लोग इबादत के लिए आए हैं, आप लोग आप लोग आप लोग। ये ठीक नहीं है। किसी को पॉइंट आउट नहीं करना। यहां पर सीगा वाहिद के बजाय सीगा जमा इस्तेमाल करना है, हम का लफ्ज इस्तेमाल करना है। आप लोग नहीं, तुम लोग नहीं, यह दुरुस्त नहीं है। हम का सीगा इस्तेमाल करें क्योंकि हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं। खुदा का कलाम दरी पर बैठने वालों के लिए भी वैसी ही हैसियत रखता है जितना तख्त पर बैठे हुए पादरी और रेवरेंड साहब के लिए है। दोनों के लिए एक ही जैसा है। इसलिए बेहतर होगा कि हम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात, वक्त का खास ख्याल रखना है। वक्त से आगे ना बढ़े। 2, 3, 4 मिनट इट्स ओके, लेकिन ऐसा ना हो कि जी बस थोड़ा सा और थोड़ा सा और मेरा आखिरी पॉइंट। और कई दफा ऐसे होता है जी मेरा आखिरी पॉइंट ये है और फिर वो पॉइंट बयान करने के बाद फिर और जी आखिर पर मैं ये कहना चाहता हूं, फिर वो भी कहने के बाद कहेंगे जी अब मैं ये बात कह के इख्तिताम करता हूं। तो वो आखिरी पॉइंट बनते चले जाते हैं। हॉनेस्ट होना है, आखिरी बात आखिरी ही होनी चाहिए। नंबर 3, कलाम के दौरान यह चीख पुकार करने की जरूरत नहीं कि गला फट जाए ते घर वालियां नूं पानी ले आना पै जाए। नहीं, इतना चीख पुकारने की जरूरत नहीं है। हमारी चीखो पुकार हमारी रूहानियत का निशान नहीं है। जितने लोग बैठे हैं उन तक आवाज पहुंच रही है, दैट्स ऑल। हमारी चीखो पुकार से रूहें नहीं जीतती, पाक रूह की तहरीक और कुदरत से रूहें जीती जाती हैं। और जहां साउंड सिस्टम है वहां पर तो मजीद इतनी चीखो पुकार की जरूरत नहीं है। मैंने तजर्बे से सीखा है। मगरब में जरा मुख्तलिफ बात है। एक मिसाल भी देता चलूं, मैं जब यहां आया और जब मुझे हमारे चर्च में जिसका मैं मेंबर हूं मौका मिला और मैं पाकिस्तान में जैसे बोलता था वैसे ही यहां आया, और जब यहां आकर मैंने खूब शोर शराबा किया मैसेज के दौरान, तो बाद में क्या हुआ कि मैसेज के दौरान यानी मुझे लगता था कि कोई खास काम नहीं हो रहा, और बाद में
एक खातून अपने बेटे को लेकर आगे आई, आज भी वो हमारे चर्च के मेंबर हैं, और वो आई और वो आकर, मैंने कहा कि आप दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? तो उस खातून ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बेटा कुछ कह रहा था। मैंने कहा जी बेटा क्या कह रहे थे? तो उस खातून ने अपने बेटे के बारे में बताया कि ये कह रहा था कि ये बंदा जब कलाम सुना रहा था तो बहुत गुस्से में था, नाराज था। हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे अपने ये बड़े चीखों पकार वाले जज्बात पर जरा कंट्रोल करना है। ठंडा खा। तो वक्त लगा, लेकिन अब मैं उतना शोर शराबा और चीखो पकार से बाज आ रहा हूं। और खुदारा हम चीखो पकार के जरिया अपनी रूहानियत का लोहा ना मनाए, ये कोई बहादुरी नहीं है। लोग इस बात को कबूल नहीं करते। नंबर 4, अपने लिबास पर खास तवज्जो देनी है। जो लिबास हम पहनते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि लाजमन कोट पेंट टाई हो। नो 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 नो। जो कोई भी लिबास हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोट पेंट हो नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं जो कोई भी लिबास हो वो हमारे मुआशरे के मुताबिक हो, ताकि कोई मनफी बात हमारे लिए ना कहे। अगर टाई पहनते हैं तो टाई का साइज जहां पर होना चाहिए वहां पर ही होना चाहिए। अगर शर्ट पहने हैं तो गरेबान खुला हुआ पहलवानों की तरह नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी अमली बातें हैं जो हमें बार बार देखनी है। अगर पैंट पहनते हैं तो फिर हमें मोहतात रहना है कि पुलपट पर जाने से पहले अच्छी तरह मैं अपने आप को चेक कर लूं। ऐसा ना हो कि मैं सामने जाकर तमाशा बनूं। आप समझ रहे हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। इन बातों को मलहूज़े खातर रखना है। 5वें नंबर पर मैं ये कहूंगा कि दौराने वाज सब लोगों की तरफ देखें, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग वाज करते हैं और लगता है किसी एक कोई बंदे ਨੂੰ सुनाਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सारे दा सारा वाज, उस एक ही तरफ मुड़कर उसी से बात करते चले जा रहे हैं। और खुदावंद ने कहा और पाकरू ने ये कहा और फलां ने ये कहा, एक ही बंदे को नहीं। मेरे ख्याल में हमें हर बंदे को, वो जो पीछे बैठा है उस पर भी निगाह, सामने वाले पर भी, और इधर जो साथ बैठे हैं उन पर भी, जमात के हर शख्स की तरफ हमारी निगाह होनी चाहिए। यह नहीं कि जो बंदा सर हिला रहा है बस उसी की तरफ देख देख कर हम कलाम सुनाते रहें, बल्कि सब की तरफ यकसां देखना है और कलाम सुनाना है। और छत की तरफ ही हर वक्त देखते नहीं रहना और कलाम सुनाते चले जाना है। नहीं, लोग छत दे अंदर नहीं बैठे, लोग तले बैठे रहे। तो इसलिए जरूर है कि हम जहां लोग हैं उस तरफ देखें कि लोग किस तरह से बैठे हैं और उनके साथ वैसे ही बात करते चले जाएं। इसके साथ साथ मैं 6ठे नंबर पर यह कहूंगा कि अगर कलाम सुनाने से पहले ऑलरेडी एल्डर साहब ने आकर दुआ कर दी है, उनको कहा गया है कि जी आप कलाम से पहले दुआ करें, और अगर मैं वाज सुनाने के लिए आता हूं तो फिर मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने कलाम के लिए फिर से दुआ करूं। उस दुआ ते की बैठा सी जेड़ी एल्डर साहब ने की थी, तो बेहतर नहीं है कि उसी दुआ पर आमीन कहें? यह हमारी दुआ कोई ज्यादा काबिल कबूल होगी। मोहतात रहें कि जब ऑलरेडी दुआ हो चुकी है तो फिर दोबारा से दुआ के साथ आगाज न करें। अगला पॉइंट, हमारे माशरे में हम इशारों से भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में हमारा हर इशारा, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है जब हम मैसेज पेश करते हैं। तो किसी ने कहा हर प्रीचर इज एन एक्टर। तो कहने का मतलब यह है
हमारा आई कांटेक्ट, हमारे साइंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट होती है प्रीचिंग या टीचिंग के दौरान। आई कांटेक्ट लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो, राबते में हूं, और इसके साथ साथ जो इशारे हों वो मुआशरे में एक्सेप्टेबल हों। कोई ऐसा इशारा नहीं करना कि लोग बगल में मुंह डालकर हंसना शुरू कर दें। नो, वो इशारे जो मुआशरे में एक्सेप्टेबल हों वो ही इशारे करें। और इसके साथ साथ ये भी कि अदब व आदाब को कायम रखना बहुत जरूरी है। हमारे मैसेज में संजीदगी का मयार होना बहुत जरूरी है, और एहतियात करें कि कहीं आपके कहे हुए अल्फाज आपके गले ना पड़ जाए। हर एक लफ्ज सोच समझकर पेश करना है, अदा करना है अपनी जबान से, ताकि लोग उन मैसेजेस और उन हवाला जात के जरिया से और उन बातों के जरिया से महजूज हों और बरकत पाएं। और अगर हमारे सामने कोई पुलपुट है, डाइस है, यानी मंबर जिस पर लोग खड़े होकर, उस पर तो खड़े नहीं होते, उसके पीछे खड़े होते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है जब उसके पीछे खड़े होकर वाज कर रहे हों तो फिर इस मंबर के ऊपर, इस डाइस के ऊपर मुक्के मत मारें। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। नो, ये दुरुस्त नहीं है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि हम इस डाइस को अपनी आड़ ना बना लें कि एक बाजू ऊपर रखकर टांगों को यूं आगे पीछे करके पीछे खड़े हैं और बस बाजू हटा ही नहीं रहे और लगे हुए हैं, सुना रहे हैं। लोग हमारे इस एक्शन को ज्यादा नोट करेंगे बनिस्बत कलाम के। और फिर जब खुदा के कलाम को लेकर जाएं तो इसको इस अंदाज से थामें कि किसी की नजर में भी इस कलाम की आपसे बेइज्जती ना हो कि ये देखो कलाम को कैसे पकड़ा हुआ है। नो, बड़ी एहतियात के साथ इस कलाम को लेकर जाना है। लेकिन इन सब कुछ के लिए ये आसान काम नहीं है। ये खुदा का कलाम है, खुदा से मांगना है और खुदा से मांग कर लोगों तक पहुंचाना है। कलाम खुदा का है, मैसेज खुदा का है, लोग उसके हैं, टाइम उसका है। हम तो सिर्फ एक औजार हैं। लिहाजा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होने की खातिर हम अपने आप को फुली खुदावन के स्पुर्द करें और दुआ का बपतिस्मा हमें हुआ हो और रूह की आग में हम जल रहे हों जब हम खुदा के कलाम को पेश करने के लिए जाएं। मेरा ईमान है कि गुजरे हफ्ते की और आज की चंद बातें इस बहुत वसी मजमून को बयान करने के लिए किसी हद तक मुआवन होगी। लेकिन यही बातें हरफे आखिर नहीं है। आप इससे भी अच्छे मैसेजेस तैयार कर सकते हैं, करते भी हैं, सुनाते भी होंगे, खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं जो मेरी तरह अभी सीख रहे और आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातों को ऐसन तरीका से पेश करने का और तैयारी करने का फजल अनायत फरमाए। God bless you all and have a great evening.